Hello everyone, this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Chartered Logics by Khyati Maheshwari, and in this video I am going to discuss with you the 50 days effective planner that you can incorporate in the remaining days. Now if you look at the CA examination, then only 70 days left for your examination, so you can refer this 50 days effective planner, and in this planner I am going to show you how you can do 2 times revision, okay, and then the remaining period of 20 days you can do third time revision. Now it is not important that it is your CA examination, it might be your CS examination or CMA examination. You can incorporate this plan, but I am going to discuss within this planner basically related to CA final examination, and after this somewhat around CA inter also. So I am going to discuss in detail, so please look full video so that you can understand all the plans effectively. Okay, so let's get started without any wasting any time, because I'm not going to waste your time. Your time is very much precious right now, so let us start. Okay, so let us discuss the content. So first of all, I am going to discuss with the daily must follow timetable, that is what the timetable you must follow these days. Okay, and then the last month planner. Now it is daily timetable, you can follow this timetable or you can follow your timetable, because you know what works for you best. Okay, and some tips from my side and some important why test is important to access your mistakes, etc., and your 50 days planners. Okay, and some additional things which I have to tell you. Now first of all, daily timetable. So I have made this daily routine for you, so you can take a screenshot either of it. In this we are going to start with 5 a.m. or 7 a.m. and then we will sleep at 11 p.m. Okay, so if this plan maybe doesn't work for you, so if you want this daily planner, let me know. I will link it down in the description below, my channel link, where you can find this whole planner. Okay, where you can contact me for the planner. Okay, so first of all, as I have discussed, I'm going to mention about the CA final. Okay, basically the CA final, okay, it is taking time to load. 45 days plan for CA final. Okay, in this I am going to show you how we are going to cover any of our subjects. Suppose financial reporting subject, I have divided into 7 parts. This financial reporting subject I have divided into 7 parts. So what you can do for one day, you can refer these index, you can do these index, and then what you can do, you can take test of it. Okay, now if you can't take test of it, it is my test series, you can contact me in the description below. What we are doing is according to this day 1 we are giving a test of you. Okay, so basically in this way you can cover up your financial reporting in 7 days. And not only the index, what I am doing, look at some any other subject. So here I am covering miscellaneous theory questions, MTP, RTP, and 1 question paper. Okay, so what I am doing is I am trying that in SFM in 6 days what you can cover up is like day 1 what you are going to cover, day 2 what you are going to cover, day 3 what you are going to cover, day 4, day 5, and then day 6. So in this way you are going to cover whole of the thing in just 6 days. So you are gaining the confidence. And let us look at the low one. So appointment and qualification of directors and meetings of boards and its power. I don't think that this day 1 will take you more than around 6 hours, even if you will cover up whole the questions of it. Okay, you will solve any question bank of it till also, then it will not going to take 6 hours or more time than that. So what you can do, you can do a single revision from all these planners. सो दिस मीन्स कि आपने ये जो प्लानर है इसको आपने इनकॉर्पोरेट करके, जो कि है 45 डेज़ का प्लानर, इसको आपने इनकॉर्पोरेट करके क्या किया, अपना जो
अपना जो फर्स्ट रिवीजन है वो इस प्लानर के हिसाब से प्रिपेयर कर लिया इन 6 आवर्स, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज़ रिमेनिंग, आप 6 आवर्स तो अभी इस समय पे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप इस समय ओनली 6 आवर्स पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग पढ़ रहे होंगे मिनिमम टू मिनिमम 8 आवर्स एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 और 13 आवर्स. So what you can do, you can make your own plan according to your suitability, according to if you want 2 subjects or 3 subjects you can do it then. Okay, so उसके अंदर आपका क्या होगा, सेकेंड रिवीजन हो जाएगा. फर्स्ट रिवीजन इस प्लान्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा एंड जो सेकेंड रिवीजन है वो आपका अपने खुद के प्लान्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा. सो लॉ जो है, लॉ को मैंने 6 डेज़ के अंदर जो है कवर अप करने की कोशिश करी है. C3 के अंदर अपन को क्या करना है, एंड देन डे 4 के अंदर अपने को क्या करना है, एंड देन डे 5 के अंदर अपने को क्या करना है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप मुझे नीचे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप का मैं लिंक छोड़ दूँगी, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड देन डे 6 को अपने को क्या टारगेट करना है, इंक्लूडिंग MTP, RTP एक्सेट्रा थिंग्स. ओके, इन दिस सेम वे आई हैव कवर अप द ऑडिट 8 days planner, and then the SCMP is 6 days planner. I have divided into 6 days, and some case study also I have incorporated into it, and then the IDT part. Okay, and the DT part. Also what you can do is you can solve it at your own, and you can watch some marathon or revisional lectures on YouTube. Okay, so in this way we are going to cover whole of our syllabus. Okay, I have prepared this huge chart for you. It is loading. Okay, a huge chart so that it all cover ups. See, FR, SFM, law, audit, SCMPE, DT and IDT in 45 days. And what you can do in remaining 5 days, you can do elective paper. Okay, you can do elective papers. Now let's get into the other things. So you can also design your weekly plans like this, that we have covered like this in 8 days. So you can do day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7 and like this. Okay, and then let's get into, I have divided some topics like these also according to the marks allocated. Okay, so you can see what is more important and what is less important. Okay, and then same I have done in the law part, and then the SFM part, the ABC analysis, what we do. In this way I have covered up the whole of the things. And now let's come to the strategy part. Okay, दिट इज़ द लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी. आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं छोड़नी चाहिए. तो इससे क्या होगा, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप कहीं पे अपनी लिस्ट बना सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें मैंने कवर अप करी हैं या नहीं करी हैं. तो कि आपको इस टाइम तक ये सारी चीज़ें कवर अप कर लेनी चाहिए. और अगर आपने नहीं करी है तो अभी भी टाइम पड़ा हुआ है जिसके अंदर आप कवर अप कर सकते हैं. ओके, एक लिस्ट बना लीजिए. मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें लगती हैं कि ये चीज़ मैंने नहीं करी है, उस चीज़ का आप लिस्ट बना लीजिए. ओके, सो प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. 15 आवर्स डे की स्टडी करनी चाहिए आपको टू सिक्योर अ गुड मार्क्स एंड स्पेशली टाइम टेबल. देखिए, अगर आपने अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाया तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए. टारगेट बेस्ड स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर अपन ने कुछ टारगेट अपने सामने नहीं रखा तो क्या होगा, 10 डेज़ निकल जाएंगे और कुछ नहीं करा होगा. ठीक है, और अपने पास में जो टाइम है वो और कम होता जाएगा. सो ये एकदम सही टाइम है, आपको अपना पूरा जो प्लान है वो डिसाइड करके उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए. ओके, ना यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स दे रखी हैं, MCQ से रिलेटेड चीज़ें बता रखी हैं. एंड देन आपको डिसाइड तो आपने कर ही लिया होगा कि आपको सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है, कि आपको किस तरीके से करना है. टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो 10 दिन निकल जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. ओके, and then don't stick to theory entire day.
ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन खाली थ्योरी पढ़ते रहें, एक दो क्वेश्चन जो हैं वो साथ के साथ सॉल्व करते रहिएगा। उसके बाद में प्रिपेयर एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन। अगर आपने देखा है किसी की भी मार्कशीट, कोई सा भी बच्चा हो उसकी मार्कशीट अगर आपने देखी है सीए फाइनल या सीए IPCSE या सीए इंटर पास करेगी, तो उसके किसी ना किसी एक सब्जेक्ट के अंदर ना एग्जामिनेशन आई हुई होती है। मैं बोलूँगी 90% ऑफ द स्टूडेंट्स की एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आई हुई होती है जो कोई भी पास होता है। सो इसलिए आपको कोई एक सब्जेक्ट तो ऐसा प्रिपेयर करना ही है जिसके अंदर आपकी एग्जामिनेशन आ सके। नाउ क्रूशियल रिसोर्सेज फॉर रिवीजन आप कहाँ से कर सकते हैं। आप RTP लेके रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं अपना, MTP लेके अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, MCQ सॉल्व करते करते अपना रिवीजन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ आई हैव ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड लिंक्स हेयर, सम इम्पॉर्टेंट लिंक्स, एंड देन CA फाइनल रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर द लास्ट मंथ्स। सो मेक शॉर्ट नोट्स फॉर द एग्ज़ामिनेशन। देखिए, जो अभी तक जो कुछ भी पढ़ाई करी वो एक तरफ, और जो लास्ट में अपन पढ़ाई करेंगे वो एक तरफ होती है। तो आपने को वो जो 1.5 डेज़ होता है उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि वो जो 1.5 डेज़ है उसके अंदर अपन पूरा जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से रिवाइज़ कर सके। तो अब तक आपने पढ़ाई करी होगी 1 मंथ के अंदर 1 सब्जेक्ट, फिर अब अपन पढ़ाई कर रहे हैं कि अपन को 1 हफ्ते के अंदर 1 सब्जेक्ट कवर अप करना है, लेकिन लास्ट में अपने को इस तरीके से कवर अप करना है कि अपने 1.5 डेज़ के अंदर पूरा जो सब्जेक्ट है वो कवर अप हो पाए। कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है RTP एंड MTP को। फोकस ऑन अमेंडमेंट्स, निमोनिक्स आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इसका एंड लाइक सब्जेक्ट्स। आपको इंडेस, AS, SA के नाम ज़रूर से कवर अप करने हैं। ओके, जब अपन सेक्शन नंबर कोट करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। एंड कवर द रेलेवेंट पार्ट फर्स्ट, इसलिए ज़रूरी है ABC एनालिसिस कि आपने ये जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीके से आप कवर अप कर लें। ओके, एंड देन वॉच द रिविजनरी वीडियो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि शायद अपन उस चीज़ की रिवीजन 4 घंटे में कर पाते, लेकिन अपन ने रिविजनल वीडियो की हेल्प से उसको 1 आवर या 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आप अगर ओल्ड सिलेबस से हैं तो आप PM रिवाइज़ कर सकते हैं, अगर न्यू सिलेबस से भी है तो भी आप PM रेफ़र कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे आपके मार्क्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, सपोज़ एक जने ने बहुत नीटली क्लीनली लिखा है और उसने चार्ट्स वगैरह का भी यूज़ करा है, सो उसको जो है ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है आपसे। ओके, प्रोबेबिलिटी। सो मैनेज योर टाइम एज़ पर ICI, क्योंकि ICI जो होता है उसका पेपर कई जगह बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो आपको वर्ड स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। इसीलिए टेस्ट जो होते हैं ना वो नॉन स्किपेबल पार्ट होते हैं। अगर आपने एक क्लासेस परचेज़ करी हैं, उसकी पढ़ाई करी है, तो आपको उसको चेक भी करना ज़रूरी है कि अगर आप उस चीज़ के अंदर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। आपको उसको अपनी जो एबिलिटी है उसको चेक करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो एक नॉन स्किपेबल पार्ट होता है, और क्यों उस पर मैं आऊँगी। ओके, मेक समराइज लास्ट नोट्स पॉइंट्स। ये सारी चीज़ें मैंने कुछ टिप्स वगैरह दे रखी हैं। उसके बाद में वाई टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं उसी पे आने वाली थी कि टेस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। क्योंकि देखिए, आपको ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रखी है। आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है। ठीक है ना, आपको कंसोलिडेटेड भी ले सकते हैं, या फिर आपको पता चल जाता है किस चैप्टर्स पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, किन चैप्टर्स पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, और आपको इंसाइट मिल जाता है क्वेश्चन पेपर का, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। ICAI के द्वारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं, और क्या आप उस लेवल ऑफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। जब एक्चुअली क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो कहीं आप उसके लिए अप्रोप्रिएट कंटेंट लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, या ओनली 2-3 लाइन्स आपके दिमाग में आती है और उसके बाद में आप कुछ नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिक्कत होती है। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। अभी क्या होता है, अपन कंपनी लॉ के अंदर अच्छे हैं, लेकिन जो ICAI का क्वेश्चन होता है वो मिक्स्ड होता है। कभी भी एक टॉपिक के ऊपर या एक चैप्टर के ऊपर पूरा एक क्वेश्चन नहीं मिलता है आपको। सो इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स आपका ठीक है या नहीं है, इसलिए भी आपका टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक। कुछ लोग होते हैं टेस्ट तो क्वेश्चंस देखकर उनको चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन जब
आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं वो लोग कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर का था। ओके, वो चीज़ भी आपको टेस्ट सीरीज़ देने से हेल्प करती है। ओके, अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऑफ कोर्स, एंड यू मेक एट द सेम क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी होती है, टाइम मैनेजमेंट आपको पता चल जाएगा कि जो आपका टाइम है उसको आप मैनेज कर पा रहे हैं विद इन द टाइम फ्रेम लाइक 3 आवर्स के अंदर या नहीं। ओके, सो इसीलिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी हमारे प्लानर्स एक्सेट्रा की रिव्यूज़ थे जो मैंने यहाँ पे उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो लगा रखे थे। एंड नाउ आर टेस्ट सीरीज़ का प्लान्स जो हमने भी रखा है वो है 50 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फॉर द full course test and 200 rupees per subject for chapter wise plus 1 full test. So if you want to enroll for this also, you can contact me in the below given links. Now if you are all here, then thank you all from my side, and now I'm going to talk for CA inter people and etc who are waiting for their strategies. Okay, so see, what I'm going to tell you is कि अभी अपने पास में अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज़ बचे हुए हैं, एंड मैंने, अगर आप CA फाइनल के अंदर है तो आपको 50 डेज़ का प्लान्स दे रख दिया है, जिसके अंदर मैंने हर एक सब्जेक्ट को 6 to 8 डेज़ दिए हैं। इसी के हिसाब से CA इंटर स्टूडेंट्स आप अपने हर एक सब्जेक्ट को इस 6 to 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए, जिसके अंदर आप RTP, MTP और एक मॉक टेस्ट 100% इंक्लूड करिएगा। ओके, सो इस तरीके से अपने को अपना टारगेट बेस्ड स्टडी रखनी है। इस तरीके से अगर अपन करेंगे तो अपने 50 डेज़ के अंदर जो है फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। और मैं कहूँगी कि इस डेली टारगेट के साथ साथ आपको एक सब्स्टिट्यूट प्लान भी बना के रखना है और सब्स्टिट्यूट प्लान को भी कवर अप करते जाना है। इस तरीके से अपना हो जाएगा सेकेंड रिवीजन। एंड ये जो डिफरेंस का अमाउंट है इस समय भी अपन एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा अपना थर्ड रिवीजन। तो अभी भी पॉसिबल है कि अपन थर्ड टाइम रिवीजन, 3 टाइम रिवीजन जो है वो कर पाएँ। यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ओके, बात है इम्प्लीमेंटेशन की कि क्या आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सो इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि लोग बाग प्लान्स खूब बना सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। सो आप अपने आप को कुछ पर्क्स देकर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग रूटीन कर सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन किस तरीके से, आप कितने बजे भी उठते हैं, आप भले ही 11 बजे उठते हैं, आप भले ही 10 बजे उठते हैं, आप भले ही 4 बजे उठते हैं, तो आपको क्या करना है, उस समय उठते ही आपको कोई ब्रेक नहीं लेना, कुछ भी ब्रेक नहीं लेना, लगातार आपको 3 आवर्स की स्टडी देनी है, उसके बाद में ही कुछ काम करना है। इससे क्या होगा, आपके दिन की जो शुरुआत होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगी, एंड देन वो जो पूरा दिन होगा वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। एक बार इस चीज़ को अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। ओके, सो यही थी मेरी तरफ से कुछ थोड़ी बहुत टिप्स। मैंने बहुत जल्दी सब चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा एफ़र्ट जो है वो पसंद आ रहा है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक इस वीडियो के अंदर हैं, तो आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। ओके, सो यस, एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपकी ज़रा सी भी हेल्प कर पाई, और अगर कर पाई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल एंड ऑल द immense thanks I have received in the comment box. I'm very much thankful for all of you for everything. So yes, I will see you soon in the next video. Thank you very much. Bye bye.